Good evening, everyone. Good evening, sir. Welcome to our today's session on the topic sound meditation with Himalayan balls of singing. And I take this opportunity to welcome our today's presenter, Mr. Deepak Nayak. He is a meditation coach, sound therapist, corporate trainer, and yoga counselor at Yoga Institute of Mumbai. Sir, it's an honor and privilege for the whole Vedicon family to be at the live interactive session with you. And I'm sure that you will definitely gonna enrich our knowledge towards meditation. Yes, and I'm very happy to be a part of Vedicon India. Thank you so much. Okay, sir. So, as our today's topic is sound meditation with Himalayan balls of singing. So, firstly, Yes. for 5 to 10 minutes, I want you to explain the topic. So, now it's over to you. Okay, so first let us get to the basic question. What is meditation? Meditation is basically, there is not one definition, there are many definitions to meditation. Let us keep it simple. Meditation is a mental exercise, like how asanas, Zumba, gymming, aerobics, all this is what working on the physical body. Exactly. What about the mind? There has to be some technique so that I can work on my mind. I cannot put my hand in my head to change things. So it's a mental exercise. I sit with my eyes closed and I focus on an object. That is the practice of meditation. Focusing on something for a long period of time to calm the mind down is what is meditation. Yes. Okay? Yes. In other words, meditation, I would say, we all take bath every day. We brush our teeth every day. Why? Yes. Why do we do that? To be hygienic. To keep a physical body clean. But do we think that our mind also requires some kind of a cleansing process? Because we have so much of negativity coming, so much of things that we don't like, hatred feeling, insulting feeling of hurt, jealousy, resentment. These are some kind of thoughts which we don't know how to get over. People come, I had a loss in the family, someone died, someone is diagnosed with cancer. Now there is worry, there is tension, there is stress, and whenever there is a mental stress, you will notice your body also becomes tight and contracted. So अभी इससे कैसे बाहर आऊं, क्योंकि सोर्स तो थॉट लेवल पे है. सोच में कुछ गड़बड़ हो रही है करके मुझे ये पेन आ रहा है ना बॉडी में. तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं अपनी सोच को अगर बदल पाऊं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊं, तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रीट कर सकता हूं. इसके लिए मेडिटेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं. इसका पर्पस है मेडिटेशन के पीछे. ठीक है. अब है कि मैं मेडिटेशन अगर करना चाहूँ, कितने तरीके के मेडिटेशन है, ये दूसरा सवाल होता है. मेडिटेशन काफी है. रेकी में मेडिटेशन है, प्राणिक हीलिंग मेडिटेशन है, विपासना बहुत फेमस है. 10 दिन का मौन पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, फ्री में करते हैं. 10 days विपासना मेडिटेशन. देन देयर इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, मून लाइट मेडिटेशन, कैंडल लाइट मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन. ठीक है. मैं उसमें से एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं साउंड मेडिटेशन. और मैं साउंड मेडिटेशन में एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो है ये सिंगिंग बोल्स. ठीक है. क्योंकि सिंगिंग बोल्स जो साउंड जो होता है वो आपको, अगर आपने ये गाना सुना है तारे जमीन पर की, एक अच्छी सी गाना है उसमें, मेरी माँ. यस. वो सुन के आपको कैसा फील होता है? बहुत डीप सा, एंड इट्स समथिंग लाइक बहुत प्योर है कोई चीज. हाँ. आपने चक दे में वो गाना सुना है शाहरुख खान का वो चक दे जो टाइटल सॉन्ग सुना है? यस. ठीक है. हाँ. दंगल का गाना सुना है, उसमें टाइटल सॉन्ग है दंगल का. यस. ये सब हम जब गाना सुनते हैं, जब दंगल का गाना सुनते हैं, चक दे इंडिया सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक देश का एक समथिंग टू डू फॉर द कंट्री, एक मोटिवेशन. बहुत सारे लोग जिम में ये गाना लगा के जिमिंग करते हैं, उनको मोटिवेट होता है कि मैं कुछ करूँ. मैं जैसे ही मेरी माँ सुनता हूँ, मुझे सारे फीलिंग्स अपनी माँ की याद आती है, ऑल द इमोशनल अटैचमेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स द मदर. ऐसे हर म्यूजिक में जब आप साउंड्स को सुनते हो, वो आपका इमोशनल स्टेट को, आपके मेंटल स्टेट को चेंज करता है वेरी फास्ट. समझ में आ रहा है यहाँ तक कि साउंड मेडिटेशन क्या. अब ऐसे भी साउंड्स है इस दुनिया में, जब आप जिसको सुनते हो तो वो आपको एक न्यूट्रल स्टेट में लेके जाता है. न्यूट्रल या तो डिटैच्ड या तो ऑब्जेक्टिव. अब ये मतलब मैं समझाता कि होता है क्या, क्योंकि हमें उस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है. फिर से एक एग्जांपल लूंगा मूवी की कि मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी है.
उसमें डॉक्टर आस्थाना कहता है कि इस हाथ ने लाखों ऑपरेशन किए, कभी नहीं कांपे ये हाथ, लेकिन अगर मैं इस हाथ से मेरी बेटी का ऑपरेशन करूं तो क्या होगा? क्या होगा? इस बेटी का ऑपरेशन करूं मैं भी इसी हाथ से जिसने लाखों ऑपरेशन किए, स्टेडी हैंड, वो हाथ कांपेगा। हाथ क्यों कांप रहा है? क्योंकि आई लव माई डॉटर, वहां पे अटैचमेंट है, ठीक है। और ये जब ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो आपका जो इंटेलेक्ट है, ऐसा नहीं कि उसमें बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर सबके अंदर काफी अच्छा इंटेलिजेंस है, वी ऑल कैन थिंक, वी ऑल कैन बी रीजनेबल, बट जब इमोशंस, एंगर और अटैचमेंट, ये दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, अटैचमेंट और एंगर, ये जब आपके अंदर इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपकी बुद्धि, इसको विवेक कहते हैं ना, विवेक, वो पुअर हो जाती है। फिर लोग झगड़ना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से दुनिया को देखें, नॉट अ सब्जेक्टिव व्यू, जहाँ पे हम देखें कि सबका किसी में भलाई है, सबका भलाई किस डिसीजन से होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ लाइफ। वो अचीव करने के लिए अगर हम ऐसे साउंड को सुने कि हमें वो स्टेट में लेकर जाए, वो कौन से साउंड्स है? वो साउंड्स ये हिमालयन सिंगिंग बोल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब आप उसको सुनते रहते हो विद द गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दैट आई गिव, तो क्या होता है कि आप एक अल्फा थीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो, जो है रिलैक्स स्टेट, काम स्टेट, जहाँ पे आपकी सोच कम हो जाती है। ये सब स्टेट्स आपको अल्कोहल में भी आता है। जब इंसान अल्कोहल लेता है, कैसा रहता है अल्कोहल लेने के बाद? रिलैक्स्ड, काम, है ना, सारा कॉन्फिडेंस अचानक उसके अंदर आने शुरू होता है, तभी जाके वो किसी से बात करेगा, वो सब कुछ करेगा। क्यों? और यही जो ब्रेन वेव स्लो हो जाता है आपको स्लो करता है आपका ब्रेन को, अल्कोहल, है ना। हम नहीं बोल रहे कि अल्कोहल करो, हम बोल रहे कि नेचुरली आप इस स्टेट्स में जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसके लिए साउंड मेडिटेशन सिखाया जाता है, और साउंड मेडिटेशन इतना ईजी है कि कोई भी उसे कर सकता है। कोई भी अगर चाहे मेडिटेशन करना, अगर वो साउंड मेडिटेशन ट्राई करे, वो फर्स्ट सेकंड सेशन में ही उसका रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने शुरू करेगा। इसके लिए साउंड मेडिटेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी ईजीली इट कैन बी डन, एनीवन कैन डू इट। अगर वो 12 साल का लड़का भी है या तो 80 साल का है, उसके भी ऊपर किसी भी, साउंड हम सबको समझ आता है, क्योंकि साउंड सारे रिलीजन्स में देखो आप, हिंदूज में, कैथलिक्स में, मुस्लिम में, एवरीवन हैज़ एन एलिमेंट ऑफ साउंड इन इट। हिंदू टेम्पल्स में जब जाते हो आप तो बेल बजाते हो, कैथलिक्स में आप देखोगे, मुस्लिम्स में भी आप देखोगे, उनमें भी एक अलग सा एक टोन है उनका, जो सूफी सिंगर, एक सिंगिंग जो सब में होता है, साउंड। सो दैट्स व्हाई साउंड मेडिटेशन इज वेरी इजी एंड वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट इज व्हाई। यस डेफिनेटली सर, हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड साउंड मेडिटेशन, वो तो हमारा क्लियर हो गया। नाउ जस्ट कम अप टू द क्वेश्चन। ओके सर, so there are lots of people who have disorder, anxiety disorder and stress in their life, but वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि हाँ हम डॉक्टर के पास जाएं और मेडिटेशन, हम मेडिसिन ले लें rather than doing meditation. तो I want you to explain कि अगर वो मेडिसिन ना लें and rather they focus on meditation, तो better healing होगी, right? So what are your point of view towards this? देखो, सबसे पहली बात, मेडिटेशन में एफर्ट लगता है, ठीक है। Yes. ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले बताऊं खुशी, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप में एक एंजाइटी है, आपको डर लग रहा है। Yes. ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, कोई आपका आगे जाने का कोई जरिया नहीं है ना। मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन है तो ग्रोथ है, बराबर। Yes. अब होता क्या है कि हमें हमारे कंफर्ट जोन में जीने की आदत है, वी आर वेरी कंफर्टेबल पीपल। चल रहा है, चलने दो, कि पेरेंट्स संभाल रहे हैं, सब कोई तो संभाल रहा है। अभी ये हुआ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपसे सोचिए, अगर समझो एक आदमी एक जिमिंग पैकेज या एक आसन पैकेज दे रहा है आपको 21 डेज का, जहाँ पे बोल रहा है ये एक्सरसाइज करो, आप ये डाइट को फॉलो करो और आप इससे अपना वेट रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और एक डॉक्टर आता है, बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप इस मेडिसिन को 21 डेज खाओ तो आपकी वेट रिड्यूस हो जाएगी। अब बताओ कि 100 जने जब ऐड देखेंगे, क्या वो जिमिंग और डाइट में फोकस करेंगे कि मेडिसिन में फोकस करेंगे? मेडिसिन पे, क्योंकि मेडिसिन इंस्टेंट है, बस एक पॉप कर लिया, पानी पी लिया और बस। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर चीज को डेवलप करने के लिए। अभी क्या आप मेडिसिन खा के साइकिलिंग सीख सकते हो क्या? अब मेडिसिन खा के क्या गाड़ी चलाना सीख सकते हो? पॉसिबल है? किताबें पढ़ के आप साइकिल चलाना सीख सकते हो? नहीं। तो आपको एक एफर्ट डालना पड़ता है, एक फिजिकल एफर्ट है,
एक मेंटल एफर्ट है, तब जाके एक बच्चा साइकिल चलाने सीखता है। सिर्फ घर पे बैठे बैठे मेमोराइज करने से नहीं आता, तो उसमें एफर्ट लगता है। अब लोगों को एफर्ट नहीं डालना है, तो इसके लिए वो लोग को इजी वे पकड़ते हैं कि चलो मेडिसिन खा लें, और मेडिसिन वो खाते हैं, इसलिए उनको मेडिटेशन पसंद नहीं आता। एक और प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग मेडिटेशन एफर्ट कर भी ले समझो कोशिश कर ली, दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप कोई चीज में आगे जाते हो, आपने समझो डाइटिंग कर लिया, अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो आप मोटिवेट होते हो कि वाह मुझे, और आपको देख के बोलते हैं कैसे किया वेट लॉस, अरे मैंने तो ना ये डाइट फॉलो किया, तो वो लोग भी करेंगे। ठीक है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें लोग मोटिवेट होते हैं। मेडिटेशन में अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अगर आपकी नींद अच्छी हो गई, अगर आपकी एसिडिटी ठीक हो गई, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में हो गए, आपका हेल्थ रिकवर हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग डीप हो गई, ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ रहा है, आपकी सोच बहुत क्रिएटिव है, तो क्यों नहीं लोग मेडिटेशन करें। प्रॉब्लम यह है कि लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनमें उनको उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े कारण हैं। एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरी बात है कि आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक जो साउंड मेडिटेशन आपको करेंगे, तो आप जरूर यू विल बी मोटिवेटेड टू गो अहेड विद साउंड मेडिटेशन, विद मेडिटेशन टेक्निक। यस यस यस, रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं सर, और रिजल्ट्स आते हैं तभी हम दूसरों को कॉपी करने का ट्राई करते हैं, राइट? Results is what motivates you, a positive result. Yes. Okay, sir, so moving to the next question. Sir, अगर meditation एक proper guidance के अंदर follow नहीं होता है, तो are there any negative impacts of meditation? Negative impacts ऐसा है कि अगर किसी को समझो बराबर जानकारी नहीं है किसी चीज की, ठीक है, और वो उसको प्रैक्टिस करता है, yes, जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, गाड़ी चलाना, उसको नहीं पता, वो सारे पुर्जों को दबा रहा है, कभी ये दबा रहा है, वो दबा, खुद से सीख रहा है इनिशियल स्टेजेस में, वो नुकसान तो करेगा गाड़ी का। ठीक है, कोई किसको पता ही नहीं कि किसने कभी जिंदगी, शायद फर्स्ट टाइम कुकिंग सीख रहा है, उसको पता नहीं कितना फ्लेम होना चाहिए, कभी तेल डालना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, कभी मैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट डालूं, उसको अगर नहीं पता है तो वो गड़बड़ करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो आपको गाइडेंस की जरूरत है कोई भी नई चीज सीखने के लिए, और मेडिटेशन इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अगर आप खुद से करने बैठ गए, आपको समझ नहीं आ रहा ना कि क्या मैं सही ट्रैक में जा रहा हूँ, पहली बात तो आपकी मन की स्थिति वैसी, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? अभी तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि सब लोग गूगल और यूट्यूब पर डॉक्टर्स बन रहे हैं, कुछ होता है तो गूगल पर टाइप करता है कि मुझे ये हो रहा है और मेडिसिन लेता है, क्या हो जाएगा ऐसे लोगों का? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया आजकल, तो बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को तकलीफ हो रही है कि एक मेडिसिन देते हैं, इमीडिएटली गूगल में जाके साइड इफेक्ट्स चेक करते हैं, फिर कभी कभी मेडिसिन नहीं खाते हैं। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो मेडिटेशन में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है कि आप जाओ तो आपको नींद आपकी, तो ऐसा होता है कि आपको वो, एक तो सरदर्द होता है, दूसरा आपकी नींद शायद डिस्टर्ब हो सकती है, आपका डाइजेशन कहाँ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि आप सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करो, तो सर में दर्द, कभी कभी मसल पेन कोई बोलता है, नींद सबसे पहले खराब हो जाती है क्योंकि आप कुछ ऐसा चीज करो जो अगेंस्ट द नेचर है आपका। तो ये थोड़े इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई इशू है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है, तो आप मेडिटेशन ना करें, आप एक कोच के पास जाएं, ठीक है, पूरा समझ लो उस टेक्निक को और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। आप जिम में जाके ना डायरेक्टली 10-20 किलो का वेट उठाओगे तो 2 दिन उठोगे नहीं, है ना? वैसी बात है, मेडिटेशन 5 मिनट से शुरू करो, सर से जाके बात करो आपके टीचर से कि मैं ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो आपको मॉडिफाई करेगा, उसको चेंज कर देगा, फिर आप उसको करो, अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो इसको प्रैक्टिस करो 10 मिनट के लिए, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। और मेरा स्पेशलिटी यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उसके ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा डिजीज़ है आपको तो ये मेडिटेशन आप करो, अच्छा आपको सिर्फ रेस्टलेस फील हो रहा है, मेंटल है, तो आप ये करो। कैंसर पेशेंट से लेकर सर्जरी जिसकी हुई है, वो सारे जो रिकवर होना चाहते हैं वो मेरे पास काफ़ी आते हैं क्योंकि उनको इतना पेन होता है बॉडी के अंदर, एंड दे वांट टू मेंटेन, इरिटेट हो जाते हो ना, जब किसी बीमारी में रहते हो इंसान इरिटेटेड रहता है कि नहीं, और वो इरिटेट होता है तो बेचारे उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचो आप, उसकी फैमिली सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोविड-19 सिचुएशन में एक को अगर कोविड हो गया, पूरी की पूरी सोसाइटी 100 लोग टेंशन में आ जाते हैं। आप सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। सब लोग घर से नहीं निकलते, घर से निकलते तो पीपी किट पहन के निकल रहे हैं, उन लोग हुआ है कोविड वो बाजू, और यहाँ पे लोग पीपी किट पहन के आप जा रहे हो बाहर, उसको इल ट्रीट करते हैं बेचारा, वैसे ही वो बेचारा टेंशन में, उसकी फैमिली टेंशन में। तो ये देखा कितना टेंशन और कितना स्ट्रेसफुल, कितना
एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, इस ये सबसे बाहर आप मेडिटेशन से आ सकते हो। Okay, so very well answered, sir, and very well explained too. Okay, sir. Thank you, So thank moving you. to our next question, sir, अगर आज हम बात करें not only in India but throughout the world, hypertension, asthma, diabetes ये कुछ basic diseases हैं जो कि हर दूसरे इंसान में पाई जाती है। तो क्या मेडिटेशन हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है अगर हमें ये डिसीजेस हैं तो? अभी ये बहुत ही अच्छा सवाल किया कि ये बहुत सारे लोग एक्चुअली इसी के लिए आते हैं। Yes. कोई हेल्थ डिजीज आ गया, क्या मुझे मेडिटेशन मदद कर सकता है? अभी मेडिटेशन का रिजल्ट देखते हैं। मेडिटेशन आपका बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके Yes. बॉडी को शांत करता है, आपको पेशेंट बनाता है। Yes. पेशेंस, फोकस और पेशेंस, फोकस और फेथ, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आदमी को डिजीज से बाहर लाने के लिए। सबसे पहले पेशेंस चाहिए। आपको अगर कोई डायग्नोस हो गया, सपोज हाइपर, सबसे पहले बेचारा स्ट्रेस, अरे यार मुझे कैसे हो गया। किसी भी इंसान को जब ये डिजीज होता है ना, वो बिलीव नहीं करता कि इसको हो गया है, वो पेशेंस लूज करता है, रेस्टलेस हो जाता है। तो पहले उसको रेस्टफुल में लेकर आओ। दूसरा, अभी आपको ट्रीटमेंट करना है। अभी ट्रीटमेंट करना तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, डाइट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मेडिसिन को ध्यान से रखना पड़ेगा, अपने पेपर्स को मेंटेन करने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के पास आपको सही तरीके से जाना पड़ेगा। इसमें बहुत ध्यान लगता है, फोकस चाहिए, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट आपको भरोसा आना चाहिए खुद पे कि मैं इस डिजीज को, आई कैन फाइट इट एंड आई कैन कम ओवर इट। तो फेथ इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता। कोई भी चीज है, डिजीज नहीं, आपको अगर कुछ करना है, ये तीन चीजें चाहिए, पेशेंस, फोकस एंड फेथ। ये आपको मेडिटेशन देगा। तो ये अगर ये पेशेंट में आ गया, उसके बाद वो अपना ध्यान रखेगा। दूसरी बात मैंने कहा, स्लीप, जो मेडिसिन जो लेते हैं, कोई भी अस्थमा, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, अल्सर हो गया, माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये बहुत प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या होता है, जो भी आप मेडिसिन लेते हो, वो आपके मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर हीट बहुत पैदा करती है, एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, और वो इंसान रेस्ट नहीं ठीक से कर पाता। जब इंसान, और हर मेडिसिन में आपको पता होगा कि आपको नींद आती है, पता है आपको नींद आ जाती है। आप क्रोसिन भी ले लो, आप 10 मिनट 15 मिनट के आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नींद में आपका वो मेडिसिन इफेक्टिवली काम करता है। कोविड में क्या करा है बताइए, बड़ा प्रॉब्लम है ना कोविड में। आपको, आप पूछिए किसी को, पानी दे रहे हैं, विटामिन सी में आपको बोलेंगे आंवला खाओ, ऑरेंज जूस पियो, सारे विटामिन सी के टैबलेट्स। वही विटामिन सी नॉर्मली जो आप फूड में जो पाए जाते हैं, आंवला इज बेस्ट सोर्स, ठीक है, संतरा खा लो और बहुत सारा पानी पियो। और तीसरा, बहुत सारा रेस्ट करो। रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको फाइट करेगी। हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं स्लीप में, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू फाइट एनी डिजीज। आपकी नींद अच्छी हो गई ना, अगर आप साउंड स्लीप करते हो, तो आप उस डिजीज से फाइट करने की अपनी एबिलिटी, अपनी फिजिकल बॉडी की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो। मेडिटेशन उसको, उस बेस को सपोर्ट करता है। तो आप मेडिसिन लो, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे विद दिस थेरेपी, इट्स अ सपोर्टिंग थेरेपी, समझ में आ रहा है? तो आप जब उसको सही तरीके से डाइट और मेडिटेशन से सपोर्ट करोगे, तो व्हाई नॉट। ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, जो मेडिटेशन करके और डाइट फॉलो करके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को रिवर्स किया उन लोगों ने। इट इज पॉसिबल। मैंने कहा ना, पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस आपको लाना है तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप डिजीज को, ऑफ कोर्स ना, विद द राइट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एंड विद द राइट गाइडेंस ऑफ द थेरेपिस्ट जो आपको सिखा रहा है, ये सब कुछ आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको रिजल्ट जरूर आएगा, और आया भी है लोगों को, तो इट्स पॉसिबल। सर, अगर आया है तो आई वांट यू टू लाइक हमारे सामने आप एक ऐसी स्टोरी, केस स्टडी शेयर करें जिसमें रियली मतलब मेडिटेशन के थ्रू नॉर्मल पीपल जो है वो रिलेट कर पाए। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जो एक काफी एक यंग लड़का आया था, तो बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही 1 महीने से। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि आई एम अ काउंसलर एट द इंस्टीट्यूट। तो मैंने बोला अच्छा क्या हुआ, ऐसा इतना यंग लड़का है, नींद नहीं आ रही। बोलते अभी तक कभी, बोलते मेरे को 25 साल में ना नींद की तकलीफ नहीं हुई थी। तो मैंने पूछा रिसेंटली कुछ हुआ क्या? तो वो बोला कि हाँ रिसेंटली अभी मेरी शादी फिक्स हुई है। मैंने बोला ठीक है। तो बोला स्ट्रेस में है तू? नहीं, आई मीन इट्स ओके, वी वर इन रिलेशनशिप, हमें शादी करना है, हम सब पता ही था हमें। लेकिन उसको वो पता नहीं 1 महीने बाद, ये जैसे जैसे उसकी डेट्स नजदीक आ रही है शादी की, इसकी एंग्जाइटी बढ़ रही है। अभी उसको नहीं पता कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, समझ में आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, एक्सेप्ट इट, और वो आ गया। तो उसने हीलिंग लेना शुरू किया।
धीरे धीरे उसको ये पता चला उसके मेडिटेटिव स्टेट्स में जब वो सो रहा था, और आपको पता है जब आप सोते हो तो आपके अंदर आप बहुत अच्छा सोते हो ना, खुशी आप सोचो कभी, और जब उठते हो आपके अंदर बहुत सारे कभी कभी अच्छे विचार, सारे जो क्रिएटिव आइडियाज है ना, अच्छी नींद के बाद आप या तो सोते हुए आपको अच्छा सा आइडिया आ जाता है कि मैं ये, या तो आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, लोग सो जाते हैं, लोग रेस्ट करते हैं, आंख बंद करके बैठते सोचते हैं और एक आंसर पॉप होता है। ठीक है, तो इसके लिए शांत होना जरूरी है, आपको अपने मन को शांत करना जरूरी है। तो ऑफ कोर्स ही डिड द मेडिटेशन, उसको आंसर नहीं, उसको आंसर ये पता चला कि वो उसकी जो पेरेंट्स है ये वो बहुत झगड़े होते थे उनके बीच में, उसके मॉम डैड के बीच में, और उसका ये परसेप्शन बन गया था कि ये जो मैरिज होता है ना ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, इसमें झगड़ते हैं लोग, और वो अपनी वाइफ से, उसकी होने वाली फियांसे से इतना प्यार करता था कि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। अब ये बच्चे ने देखा कि यार डैडी मम्मी को हर्ट कर रहा है, गलत बात झगड़ रहे हैं, उसको लगा कि शादी के बाद मैं भी ऐसी नहीं बन जाऊं, मैं इसको वो इतना प्यार करता है कि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता। अब उसके अंदर ये बिलीफ बैठ गया कि मैरिज अगर हो गई ना तो ये होता ही है, ये ट्रुथ बन जाता है आपके अंदर एक, समझ गए, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसे आपने देख चुके हैं। समझ ना, तो अभी एंजाइटी हो रही है, तो फिर धीरे धीरे उसको पहली बात तो ये आंसर आ गया कि अच्छा इसकी वजह से मैं डर रहा हूँ, तो पास्ट में हुआ था जरूरी नहीं आगे होगा, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो फेथ आ गया उसके अंदर, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो अभी उसको डर नहीं, अभी वो बोला कि नाउ आई एम स्टेबल इनफ, अभी मैरिज से मुझे डर नहीं लगता, मैरिज वर्ड से अब मुझे डर नहीं लगता। एक और केस हुआ था, एक ऐसी, एक सेम मैरिज में ही हो रहा है, पता नहीं, अचानक उसको 6 महीने से शी नॉट हैविंग स्लीप, 2 से 3 घंटा सोती है, आंखें पूरी यहाँ पे डार्क सर्कल्स हुए थे, शी वाज लूजिंग वेट, टेंशन आ रहा था उसको, ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। मैंने पूछा, फिर हमने ऑफ कोर्स फर्स्ट सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन, बोले कि मुझे जब से ये मेरा शादी है, और लेकिन उसका शादी का उसको समझ नहीं आ रहा था अगेन कि क्यों हो रहा है। तो उसने ये कहा कि पिछले साल मेरी एक्सीडेंट हुई थी, आफ्टर 6-7 सेशंस उसको ये रियलाइज हुआ स्लीप के अंदर। और उसमें जब उसमें वो 3 महीने बेड पे थी। ओके, अब उसका ख्याल किसने रखा बेड पे? उसके मॉम डैड ने। बराबर, मम्मी उसकी ख्याल रखती थी, ठीक है, बेड पे है, अभी वो रिकवर हो गई है। अभी उसको डर है कि मैं अगर शादी करके मैं ससुराल जाऊंगी, कहीं मुझे ऐसा नौबत आ गई मेरी कि मुझे ये सिचुएशन फिर से। तो वो कहती है, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो क्या कहेगी, बोली कि मैं अपने इन-लॉज के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, उनको स्ट्रेस आ जाएगा ना अगर मेरे ख्याल रखेंगे, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ देम, लेकिन अगर वो मेरा ख्याल रखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको डर है कि हम है ना ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को अगर लेट गो नहीं करेंगे, ये हमारे फ्यूचर में आके खड़े हो जाता है और हमें फुल्ली जीने को नहीं देता है। समझ में, एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा है आपके पास्ट में, तो आप हमेशा डर के जियोगे कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो अभी उसको क्या डर है कि मैं अगर ये सिचुएशन फिर से मेरे लाइफ में आएगी, क्या मैं खुद की, मेरे इन-लॉज मेरे वैसा ख्याल रखेंगे, मैं उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करूं, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, अगर किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, क्या मैं रिकवर कर पाऊंगी उस सपोर्ट से? तो वो उसके अंदर डर आ गया। ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि पास से एक लेडी आई थी जिसका बचपन में जो 2 इयर्स की उसकी जो डॉटर थी, वो फीवर था उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, उस बेटी को माँ ने, और 2 दिन के बाद शी पास्ड अवे। ओके, अब सोचो, अब हो गया ये सब, हो गया 20-25 साल के पहले, और अब वो फिर से आई है। अभी उसका जब बेटा बीमार होता है तो उसको क्या फीलिंग आएगी? थोड़ा फीवर आएगा तो वो पैनिक हो जाती है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसको पसीने छूट जाते हैं, यार उसको 1 घंटा फीवर आ गया, वो डॉक्टर के पास भागती है, डॉक्टर बोलते हैं वायरल फीवर है, रेस्ट करो, 1 दिन के बाद देखते हैं, मेडिसिन में दूंगा, लेकिन 1 दिन तो दो बॉडी को। क्या मेडिसिन में दूंगा, ब्लड टेस्ट करूंगा? नहीं, ब्लड टेस्ट कराती है, पूरा ब्लड टेस्ट, ये वो सब 3 डॉक्टर के पास जाती है, देखा ये क्या हो रहा है, डर है कि वो फिर से सिचुएशन सामने आना जाए। अभी समझ में आ रहा है कि ये एंजाइटी कैसे आप पे आती है, पास से आती है। तो मेडिटेशन से क्या हो जाता है कि आप अपने मन को शांत करते हो, भरोसा करते हो, पेशेंस लाते हो और ध्यान से अपनी चीज़ों को करते हो, तो आप इस एंजाइटी से बाहर के। और जो फियर जो है ना, आपको मेंटली पैरालाइज करता है। फिजिकल पैरालिसिस सबको पता है, मेंटल पैरालिसिस क्या है? फियर हो गया तो आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप दबक के बैठ जाओगे ये सोच के कि यार मेरे से नहीं होने वाला। एंड देन इवन इफ एन इंटेलिजेंट पर्सन समटाइम्स रियली फेल्स टू टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम, बिकॉज ही फियर्स यार ये मेरे साथ फिर से ना हो जाए, मैं अगर ये कुछ कर लूँ, पास्ट में मैंने किया था बिजनेस पार्टनरशिप में, वो तो मुझे खराब गया, अब मैं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करूँगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट अलाउइंग दिस पर्सन
to take any more risks in life. Yes, yes, yes. सर ये जो भी आपने केस स्टडीज बताई उससे आई केम टू वन पॉइंट कि रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. अगर Yes. आपको रियलाइजेशन नहीं है तो आप अपने आप को ही पता नहीं कर पाएंगे कि आप किस सिचुएशन में है, आप कैसी कंडीशन में, राइट? यस बात यस. अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, आपको अवेयर हो जाओ कि आपको पता है डायग्नोसिंग डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर सबसे पहले आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं कि भाई तुम्हारा फीवर मलेरिया से हो रहा है, कोविड से हो रहा है, डेंगू Yes. से हो रहा है, टाइफाइड से हो रहा है, सारे में फीवर आता है. यस. तो उसको डॉक्टर का काम क्या है? डायग्नोस करना. वैसे हमें ये समझना है कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, वो आप True. और मेडिटेशन आपको उस सोर्स तक लेके जाएगा और उस फियर को, आपका उसकी इंटेंसिटी जो इमोशन है फियर को, उसको धीरे धीरे कम करेगा. और जैसे फियर कम हो गया ना, फियर कम होता है तो पता है क्या आता है ऊपर? आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आता है. बराबर. Yes. फियर एंड कॉन्फिडेंस आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. फियर चला गया, कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इज द की इंग्रेडिएंट टू टेक एक्शंस. कॉन्फिडेंस है, फेथ है, तो आप उससे बाहर आ जाओगे. फियर को कम करो. आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, आपके अंदर फियर भी है. अभी आप चूज करो आपको क्या करना है. वैसे अच्छा, आई कैन रीड अ क्वेश्चन. आई एम सो सॉरी टू समवन इज आस्किंग हाउ टू गेट इंसोम्निया, हाउ टू गेट रीड ऑफ इंसोम्निया. सो इंसोम्निया जो है, इट इज, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही ठीक से, उसको इंसोम्निया कहते हैं. लैक ऑफ स्लीप. और स्लीप होती है लेकिन मैं 8 घंटे सोती, लेकिन मुझे अभी भी नींद चाहिए. Yes. अभी एक है कि इंसोम्निया आप मेडिटेशन से बिल्कुल जरूर, मेरे सारे क्लाइंट्स लोग, जब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले बोलते हैं मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे जो विचार, आपके जो विचार अगर चलते रहेंगे, देखो एक मशीन जो होता है ना, कोई भी मशीन, आप उसको 24 घंटा चलाओ, क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? Yes. लैपटॉप ले लो, कोई भी मशीन को, गाड़ी को भी आपको रेस्ट, कोई भी मशीन, नेचर को रेस्ट की जरूरत है. दिन Yes. और रात हार्ट पंप करता है, फिर रिलैक्स होता है. एवरीथिंग हैज रेस्टिंग नेचर इन इट. ठीक है. अभी रेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आप बार बार अपने बिल्स के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो. अभी इतने सारे विचार चलते रहेगा. इतने सारे मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन रहेंगे. Yes. तो मोबाइल हैंग होगा, Yes. लैपटॉप हैंग होगा. Definitely. तो उसको आप कैसे स्विच ऑफ कर सकते हो? आपको ऐसा एक बटन चाहिए ना कि मैं यार इसको थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दूं ताकि मैं ठीक से सो पाऊं. Yes. तो मेडिटेशन आपको अपना, और गलती कहाँ करते हैं ना खुशी लोग, गलती ये करते हैं कि लोग जब पेन आते हैं, पेन एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग प्लेजर्स के पीछे भागते हैं. प्लेजर बहुत सारी है दुनिया में. Yes. इतने सारे वेबसाइट्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने सारे वेबसाइट्स आप जाओ और आपकी एंटरटेनमेंट 2-3 घंटे निकल जाएंगे. नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये ना वो, मोबाइल पे इतने सारे एप्लीकेशंस क्यों चल रहा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्यों इतना पॉपुलर हो गया? क्योंकि लोगों को पेन हो रहा है, दे वांट टू वांट टू गेट रिलैक्स्ड. सी अगेन, दे वांट टू एक्चुअली फील रिलैक्स्ड. तो लोग यूट्यूब में 1 घंटा देख लिया, अच्छा लगा, शांत हो गया. ये नहीं चलता है, सिगरेट, चलो ये भी नहीं चलता है, चलो एक पैग, वो भी नहीं चलता है. ड्रग्स, ये सब कुछ है ना, आपको मेंटली रिलैक्स करता है. सोच समझ के चलो, आपको मेंटल रिलैक्सेशन जरूरत है, नहीं तो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी. फिजिकली ब्रेक डाउन हो जाएगी, मेंटली भी आप ब्रेक डाउन हो जाएगा. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएगी फिजिकल बॉडी पे. है ना? तो स्लीप, तो आपको अपना मन ऐसे चीज में लगाना है जिससे आप रेस्ट करो. साउंड्स इज द की. आप साउंड्स को सुनो, गाइडेंस को सुनो. मैंने यूट्यूब में एक अपलोड भी किया, मेरा एक वीडियो. मैं सबको कहता हूँ ये बेसिक मेडिटेशन तो कर लो. मेरा यूट्यूब चैनल है मेडिटेशन विद दीपक, वहाँ पे जाओगे आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, आप उसको सुनो. आपको एक दिन में कितने लोगों ने मुझे बोला है कि मुझे नींद अच्छी आ रही है वो करने के बाद. तो आप उस मेडिटेशन से भी आपके स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो. फ्री में है, 15 मिनट से, जाके उसे कोशिश कीजिए. यूट्यूब पे अवेलेबल है. किसी को भी इंसोम्निया है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये कर लो, आपको बहुत ही इम्प्रूव फील होगा आपकी स्लीप पैटर्न. अगर नहीं हो रहा है, then you have to have other ways, natural ways of other meditation techniques that I offer to come out these problems. Yes sir. आज आपसे बात करके सर, मतलब डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मेडिटेशन का एम भी नहीं पता था, एंड नाउ वी आर गेटिंग द थिंग्स. एंड यस, डेफिनेटली मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से समझ आया है आज. Thank you. Yes, and sir, it's a pleasure to have a talk on a very important topic, meditation. Now it's our audience time. If they want to ask anything, any question is going in your mind, so you can ask.
Okay, sir. So till then, I want you to say some words about Bevicon. So I really want to first thank you, Khushi, your team, Saksham, and all the people who are taking an initiative कि wellness जो है physical wellness, mental wellness, ये इतना important हो गया है कि ये पूरे अब कोविड में क्या हो रहा है, everyone is under stress. लोगों को अभी सर्वाइवल एक इश्यू हो गया है, ठीक है, कि मैं कैसे इस फेस को, ये कोविड का 6 महीना जब तक वैक्सीन नहीं आता मैं सर्वाइव कर जाऊँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो इसमें वेलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम हेल्थ मेंटली फिजिकली उसको आप उसका ध्यान रखो, उसकी अवेयरनेस में लो कि ये आपका इतना कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ आपके माइंड, आपके हेल्थ और मेंटल वेलनेस से ही हो सकता है. और आई रियली वांट टू से सक्षम रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय ब्रिंगिंग दिस अवेयरनेस इनटू द पीपल्स लाइफ एंड सेइंग कि चलो हम इसको आगे लेके जाएंगे वेलनेस इंडस्ट्री को, ये सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वेलनेस का, और इसको हम आगे लेके जाएंगे. सो इट्स वंडरफुल एंड योर टीम इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. इतना कोऑर्डिनेशन करके यू आर डूइंग दिस एंड very good organization. Very happy to be with this group. Thank you so much, and lots of love to you, sir, from the whole Webicon family, and we are glad that you have joined us. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you for inviting me. And if anyone has any questions related, they can always I'm on, if you just Google meditation with Deepak or Deepak Naik, they will find me. I'm on Facebook, Instagram, और मैं कोशिश ऑफर करता हूँ लोगों को 5 minutes meditation, 10 minutes meditation, 15 minutes meditation, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपका एज है, जो आपका हेल्थ इश्यूज है, उसको मैं काउंसिल करके उसको समझ के उस तरीके का आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा. और इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ऑडियोज़ भी देता हूँ. तो आप अगर मेरा ये सेटअप देखोगे तो ये जो पूरा सेटअप है मेरा, ये ऑडियोज़ का, और ये जो मेरा पूरा सेटअप है, मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ मेरे मेडिटेशन सेशंस को, ऑडियोज़ को, और मैं उनको फिर उनके फ़ोन में उनको डिलीवर कर देता हूँ. तो आप उसको सुन के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका पूरा फ़ायदा. और जैसे हम अगर आपको अभी तो यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, आप सीख सकते हो. तो वैसे ही आप ऑडियो सुन के, आपको मेडिटेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आँख बंद करके सुनना है ना. तो मैं इसके लिए ऑडियोज बना के पहले मैं ऑफलाइन करता था, अभी मैं ऑनलाइन सबको वो सर्विसेज अवेलेबल कर रहा हूँ एट अ वेरी वेरी चीप प्राइस. पीपल कैन गेट द बेनिफिट, प्रैक्टिस एट होम इंडिपेंडेंटली फॉर द लाइफ टाइम, वो आपका हो जाएगा एंड यू कैन रियली लिव अ मच बेटर लाइफ. Yes, sir, definitely. Sir, I want you to play that, your singing balls. So there are two ways of playing, Khushi. One way is that you hit, strike it. Okay. Could you hear it? Yes. Vibrations are there, right? ये जो vibrations है ना, वो इतने ये जो हमारा जो ये है माइक है, उसको कैप्चर नहीं करता, तो साउंड को डिस्टॉर्ट कर देता है वो. ठीक है. और दूसरा तरीका इसको कहते हैं रिमिंग ऑफ द बोल. Could you hear it properly? I don't know, because I've not tried it on Instagram Live. Was it good? Yes. So if you're having a lot of sound is soulful, felt peace, nice. So as I said that, did you put any effort to have peace? Sound सुनते ही हम अच्छी म्यूजिक सुनते हैं, हम एफर्ट डालते हैं क्या? एक घंटा हम म्यूजिक सुनते हैं, 1 घंटा मूवीज देखते हैं, आप एफर्ट डालते हो? 1 घंटा मूवी देखते हो तो कैसे हो जाता है? तो उस पर ध्यान नहीं लगता है क्या? 1 घंटा मूवी देखने में तो उस पर भी ध्यान लगता है. 1 घंटा क्या, 3 घंटा मूवी देखते हैं. तो फिर ये मेडिटेशन भी ऐसी है कि आप ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली आप एक पीसफुल स्टेट में जाते हो विदाउट हैविंग फोकस, है ना, कॉन्सेंट्रेट. ये बहुत डिफिकल्ट है. और ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो गलत कॉन्सेप्ट लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट,
sound meditation erases all, it just eliminates the entire thing of difficult and नहीं होगा मुझसे. मैंने अभी 1 मिनट के लिए भी नहीं बजाया और लोगों ने कहा कि आई फील नाइस, आई जस्ट हर्ड दिस साउंड एंड आई वांटेड टू बी क्वाइट इन माय माइंड. क्वाइटिट्यूड जो आता है वो आपको साउंड से जरूर मिलेगा एंड एनीवन कैन मेडिटेट. एक्चुअली मेरा पहला जो मेरा था ABCM मैंने रखा था, ABCD किया था, एनीबॉडी कैन डांस, तो मैंने ABCM रखा था, एनीबॉडी कैन मेडिटेट. आई हैव टू that's cool. ABCM था, एनीबॉडी कैन मेडिटेट. It is. I believe it is possible. Anyone can. Yeah, but under proper guidance, I think. Like, अगर guidance नहीं है ना सर, तो there are negative impacts. कोई भी चीज सीखते हो तो एक आपको टीचर जरूरत होती है. खुद से भी सीखते हो, लेकिन क्या है, अगर आप गलत जा रहे हो, आपको कौन बताएगा कि आप गलत जा रहे हो? तो आप गाइडेंस का मतलब क्या, आपको बोलता है कि ये क्या ये सही है, क्या ये गलत है, नहीं ये गलत है, आप इसको चेंज करके आप ऐसा करो. अच्छा, अब मैं सीख, इसके लिए हम कॉलेज जाते हैं, इसके लिए लेकिन हमें कॉलेजेस में मन को शांत करना नहीं सिखाते, कॉलेजेस में सोचना कैसे हम नहीं सिखाते, हम सिर्फ रटना सिखाते हैं कि अब रटो रटो रटो, एग्जाम में पास हो जाओ और एक नौकरी ले लो. और नौकरी जब करते हैं वहां जाके ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि वहां उनको उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको बात करने नहीं आता, उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मैनेज, क्योंकि वो सिचुएशन स्कूल में नहीं दिया आपको, तो आपको तो ये स्ट्रेस आज यूथ में बहुत ज्यादा है. और मैं यूथ को हमेशा कहता हूँ कि आप साउंड मेडिटेशन ट्राई करो, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, कोशिश करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट आएगा. और फिर आपका स्टडीज, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, गुड स्लीप. आपको पता है स्लीप का इतना बड़ा जो इनसोम्निया जो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और इसको जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ देती है आपको. एक बार आप उस मेडिसिन लेना शुरू कर दिया तो आप उस पर हुक हो गए. ठीक है, आपको फिर दूसरा दिन आपको नींद नहीं आ रही, आप फिर से मेडिसिन ले रहे हो, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ते रहता है. फिर क्या होता है कि आपको फिर वो आपकी बॉडी नेचुरली वो स्लीप को क्रिएट नहीं कर पाती है. नेचुरल जो आपका इंस्टिंक्ट है स्लीप, वो मेडिसिन की वजह से अभी डिपेंडेंसी हो गया है, और वो आप कब तक करते जाओगे इसको, और फिर उसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स. एंड आई नो सो मेनी पीपल टेकिंग मेडिसिन फॉर स्लीप एंड एनी एंजाइटी का जो मेडिसिन आता है, फॉर सम टाइम आपको अच्छा लगता है, उसके बाद वो जब इफेक्ट चले जाएगा फिजिकल बॉडी से, पानी पियोगे, आप यूरिनेट करोगे, तो पूरा आपका बॉडी फिल्टर करके उसको एलिमिनेट कर देता है. फिर आप मेडिसिन लेते हो. तो इससे बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है, अगेन आई सजेस्ट इज साउंड मेडिटेशन. यस, एडिक्शन हो but towards meditation, right? That's good. Addiction towards meditation is is very nice. Yeah. Thank you, sir. So, sir, now it's a wrap up time, and I feel overwhelmed to talk with you, sir. And same here. Meditation समझ आया. That is important. Yeah. Right. So, okay, sir. Thank you so much, sir, and lots of love from the whole Webicon family. And we are looking forward to many more sessions with you. I would love to do it. I would love to do a session with Webicon India. Yeah, thank you so much. Okay, someone is commenting, I have experienced the singing bowls meditation under Deepak sir guidance. It's really worked. Wow, that's great. Thank you. Yeah, sir. Okay, sir. So, thank you so much. Thank you. And lots of love from whole Webicon family. Same, yeah. Lots of love to you all. Thank you so Saksham, much. Khushi, your entire team. Very good. Pratyaksha, everyone. Thank you.